Welcome dear students, I am Priyanshu welcoming you to Early Bird IAS. We are here to study science and I hope you are just enjoying the sessions that we are providing you. Okay, so let's start our today's session. Let's start our today's session. Okay, so let's start. I hope you are well. Let's start. Our today's session is fundamental unit of science. Fundamental unit of science or fundamental units of physics. Okay, there is no difference between the fundamental unit of science and fundamental unit of physics. Okay, so let's start our today's session with the smile. Okay, let's start. The international system of unit is called SI system. What is called? It's called SI system. Okay, system of unit. Defines 7 fundamental units. How much fundamental units are present? How much units are fundamental units? So 7 fundamental units. We have only 7 fundamental units that from the basic for all other unit in physics. ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स दैट वी हैव इज द बेसिक ऑफ ऑल द यूनिट ऑफ फिजिक्स एंड साइंस. ओके, सो ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट है उनसे ही डिराइव्ड होके क्या बनती है? हमारी अदर यूनिट्स बनती है. कैसे? ये हम अभी आगे सीखेंगे कि सर फंडामेंटल यूनिट से कैसे जो है हमारे पास नई नई यूनिट बनती है. जैसे हमने कहा मीटर इज अ फंडामेंटल यूनिट, बट मैंने कहा मीटर पर सेकेंड स्पीड, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, मीटर पर सेकेंड. तो दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम लेंथ एंड टाइम. सो लेंथ इज फंडामेंटल यूनिट एंड टाइम इज फंडामेंटल यूनिट. तो फंडामेंटल यूनिट से क्या होंगी? जो अदर यूनिट्स, अदर ऑल द यूनिट्स ऑफ फिजिक्स, अदर ऑल द यूनिट्स ऑफ measurement derived from these 7 fundamental units. Sir, what is the name of fundamental units? So first of all is kilogram. What is kilogram? kg. Okay, second one is meters. Second one is meter. Okay, then third one is time, second. Fourth one is Kelvin, means temperature. Okay, and fifth one is mole and mole means the substance of material. Okay, it's called mole. And the ammeter, the unit of electricity. And the last, it's called the candela, the light, the unit of intensity of light. Intensity of light means this is the light. जैसे आपके घर के जो बल्ब हैं उसकी इंटेंसिटी कितनी तेज वो जो है क्या करता है? जलता है. ओके, इट्स कॉल्ड दी कैंडेला. ओके, सो नाउ वी जस्ट डिस्कस ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ फिजिक्स एंड साइंस. इट्स कॉल्ड फिजिक्स. ओके, ईच एंड एवरी फंडामेंटल यूनिट. ओके, not the science and not the physics. It is fundamental units. These are the fundamental. So our first is mass. The amount of matter in an object often measured in kilograms in kg. तो किसी भी मैटर का, किसी भी चीज का जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ मैटर कि उसके अंदर कितनी जो है अमाउंट के अंदर मैटर है. जैसे इसका वेट विल बी
the weight of the stick will calculate in kgs, in grams, kg and in gram, in tons, in metric tons. Okay, this is called mass. This is called mass. Then length. Second one is length. The distance between two points measured in meter, centimeter, kilometers. Okay, it is the distance between 2 points. It means this is the point A and this is the point B. What is distance between point A and point B? It measured with length. It will measure in length. Okay, then time. Duration of an event measured in a second. जैसे किसी चीज की ड्यूरेशन जो है वो हम कहाँ काउंट करेंगे, वो हम काउंट करेंगे टाइम में. जैसे मैं इस पॉइंट से यहां तक चलने में जो टाइम जो मैंने ट्रेवल किया है, जो मैंने इस पॉइंट से, मान लो मैं यहां से एक लाइन स्टार्ट करता हूं, मैं यहां से ओके, आई स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम दैट पॉइंट एंड टू दी दिस पॉइंट. सो व्हाट इज टाइम, what time that I take to cover this to this point is called time. मतलब जो टाइम मैंने लिया है किसी इवेंट के होने में, जो पीरियड ऑफ टाइम, जो पीरियड लगा है, ठीक है, तो उसे हम कहाँ मैनेज करेंगे, तो ड्यूरेशन ऑफ एन इवेंट मेजर्ड इन सेकेंड, मिनट एंड आवर्स. ओके, then next what, electric current. Flow of electric charge measured in ampere. Flow of electric charge measured in ampere. जो आपके जो चार्जिंग की वायर है, जो आपके एडेप्टर से कनेक्ट हो रखी है, आपके फोन तक आ रही है, उसके अंदर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है. क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है. इसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो से हमारा फोन क्या होता है भाई, 100% चार्ज होता है. तो इसको किसमें काउंट करते हैं हम लोग, इसको हम काउंट करते हैं किसमें, इन एम्पियर. दिस इज कॉल्ड द फोर्थ फंडामेंटल यूनिट. ओके, आई होप दिस क्लियर. द बेसिक्स, दिस इज द बेसिक, मास, लेंथ, टाइम एंड इलेक्ट्रिक करंट. ओके, we will learn about how to change it, how we use it. Okay, so don't worry, we will learn. Then number 6 is temperature. Okay, the degree of hotness or coldness measured in Kelvin. Okay, so degree of hotness कि यहाँ पर कितनी हॉटनेस है, यहाँ पर जो हमारे पास जो चपाती आ रही है वो कितनी हॉट है, हमारी आइसक्रीम कितनी कूल है. तो ये क्या है, डिग्री ऑफ स्टेट. डिग्री ऑफ स्टेट कॉल्ड हॉटनेस एंड कोल्डनेस. ठीक है, ये किस में मेजर होती है, ये मेजर होती है केल्विन के अंदर, ये मेजर होती है डिग्री सेल्सियस के अंदर, ये मेजर होती है फ़ारेनहाइट के अंदर. ओके, तो ये तो क्या है भाई, मेजरमेंट यूनिट है. बट केल्विन हो गई, सेकंड हो गई, एम्पियर हो गई, मीटर हो गई, किलोग्राम हो गई, दीज आर दी एसआई यूनिट ऑफ फंडामेंटल यूनिट. ओके, देन नेक्स्ट व्हाट, नंबर 7, सॉरी नंबर 5 थी हमारे पास, टेम्परेचर. ओके, टेम्परेचर एट नंबर 5 एंड देन दी नंबर 6, amount of substance. Number 6 is amount of substance, the quantity of substance measured in moles. जब हम बात करते हैं ना कि सर कोई केमिकल है, दिस इज आवर टेस्ट ट्यूब. इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं कहता हूं कि यहां तक मैंने केमिकल भरा है, उस केमिकल के पार्टिकल्स को मेजर करना है. तो किस में पार्टिकल मेजर करेंगे, हम उसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहेंगे. क्या कहेंगे, हम उसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहेंगे. और उसे मेजर किस में करेंगे, हम उसे मेजर करेंगे मोल के अंदर. किस में मेजर करेंगे, हम उसे वी विल मेजर द सब्सटेंस इन मोल फॉर केमिकल में.
केमिकल सब्सटेंस बोल सकते हैं, केमिकल सब्सटेंस। ओके, देन लास्ट इज luminous intensity. Luminous intensity is not illuminous, it is luminous intensity or the intensity of light. हम इसे क्या बोल सकते हैं? Intensity of light means the power emitted by a light source. Power emitted by a light source means ये स्क्रीन आपकी जो है या आपका जो फोन जो है वो क्या कर रहा है? एक पावर या फिर एक लाइट जनरेट कर रहा है। क्या कर रहा है? जैसे आप ब्राइटनेस इंक्रीज करते हो तो आपकी आंखों में दर्द होता है, ठीक है? तो ये जो है क्या आपका जो फोन है वो क्या है भाई? एलिमिनेट कर रहा है किसको? लाइट को। तो हम क्या कहेंगे? तो पावर जो है emitted by a light source, power emitted by a bulb, power emitted by a tube light, power emitted by sun, by star, by moon, by any light source, any light source measured in कैंडेलाज। मेजर्ड किसके अंदर करते हैं हम? कैंडेला के अंदर मेजर करेंगे। जैसे देखो मैं दिखाता हूं आपको, अभी मैं आपको टॉर्च ऑन करके दिखाता हूं। तो ये जो चीज है ये क्या है? ये लाइट है। इसकी इंटेंसिटी कि ये सर अभी थोड़ी स्लो कूल डाउन है या फिर बहुत ज़्यादा तेज है, तो ये किसके अंदर बताएंगे हम इसे एक देखो मैं और आपको चलो छोटा सा और एग्जांपल, एक अच्छा एग्जांपल देते हैं हम आपको। नाउ यू कैन नाउ you will be understanding of, you will get the clear understanding. So this is the intensity of light, how it cool down, how it जो है warmer and cooler, intensity of light. ओके, तो ये क्या था? ये हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट थी। और इसे मेजर किसके अंदर करते हैं? इसको मेजर करते हैं हम कैंडेला के अंदर, फिर कैंडेलाज के अंदर। कहाँ मेजर करते हैं हम इसे? मेजर करते हैं भाई कैंडेलाज के अंदर। क्लियर? चलो नेक्स्ट व्हाट? सो अब आते हैं हम कुछ और बेसिक इंट्रोडक्शन की। भाई ये तो हमने एक एक बार नाम चेक किए कि कौन कौन सी है भाई। जस्ट रिपीट विद मी। फर्स्ट हमने कौन सी डिस्कस किए? फर्स्ट हमने डिस्कस किए सर लेंथ। कौन सी? लेंथ डिस्कस किए। फिर मास डिस्कस किए, फिर टाइम डिस्कस किया है ना? लेंथ डिस्कस किए, फिर हमने मास डिस्कस किया है, फिर हमने जो है हम कहेंगे सर और इलेक्ट्रिक पावर डिस्कस किया है हमने, एल्यूमिनस जो है लाइट की इंटेंसिटी डिस्कस की है, टेम्परेचर डिस्कस किया और सब्सटेंस ऑफ मोल डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये सातों जो हैं नंबर, नेम ऑफ दीज 7, दीज ऑल फंडामेंटल यूनिट्स यू शुड रिमेंबर, आपको याद होनी चाहिए। ओके, चलो अब उनको थोड़ा और डिटेल के अंदर देखते हैं कि सर लेंथ क्या है, किसे लेंथ माना है, किसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ने लेंथ माना है, किसे जो है वेट माना है, किसे टाइम माना है, 1 सेकंड कितना होता है, 1 किलो कितना होता है, वो सब अब देख लेते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। फिजिक्स क्या है भाई? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ द यूनिवर्स वर्क। अब तो ये आपको याद हो गई होगी, है ना? अब तो ये आपको बिल्कुल याद हो गई होगी कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स एंड हाउ इट वर्क्स, स्टडी ऑफ हाउ द यूनिवर्स वर्क एंड इट एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करती है? द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्न द बिहेवियर ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड हाउ दे इंटरैक्ट। अब यहाँ क्या है कि फिजिक्स क्या बताती है? फिजिक्स हमें बताती है कि किस तरह से जो मैटर है उसका बिहेवियर है, और उसका बिहेवियर ऑफ मैटर कौन गवर्न करता है, या हु गवर्न द बिहेवियर ऑफ मैटर। तो ये हम कहाँ पढ़ते हैं? ये हम पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर। वो किस तरह से इंटरेक्ट करता है, वो हमें किस तरह से हमारे सामने आता है। ओके, देन व्हाट नेक्स्ट? अंडरस्टैंडिंग द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ यूनिवर्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इट ओरिजिन एंड हाउ इट फंक्शन। कि जो अंडरस्टैंडिंग है फिजिक्स और हमें क्या करती है, फिर फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हमें क्या बताते हैं? तो फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हमें बताते हैं कि किस तरह से जो हमारा यूनिवर्स है उसका ओरिजिन हुआ है, किस तरह से हमारा यूनिवर्स जो है वो बना है। ओके, और इसका
काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन, हाउ इट फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूनिवर्स, ये कौन बताएगा हमें, ये हमें फिजिक्स बताएगी। In the realm of physics, the fundamental understanding of how things work rests upon a robust system of measurement, कि किस तरह से फिजिक्स हमें बताएगी किस तरह से हमारा जो सिस्टम है, हमारे पास जितनी भी जो फिजिक्स है वो तो फिजिक्स हमें बताएगी, तो रियलम हमें अंडरस्टैंडिंग करवाएगी, या फिर जो है हमें बताएगी कि किस तरह से हमारे जो जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें जो फिजिक्स पर डिपेंड करती है, हमने उसे कितना अच्छे से, कितना सटीक, कितना परफेक्टली उनका मेजरमेंट किया है, कितना परफेक्टली उसका मेजरमेंट जो है वो हमने किया है। ओके, देन एम्प्लॉइंग स्पेसिफिक यूनिट ऑफ ईच फिजिकल जो है क्वांटिटी। अब यहां क्या है, हमारे पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है, उन सबका अपना अपना, उन सबका ईच एंड एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैव इट्स ओन यूनिट, have its own SI unit, not the fundamental unit but its own SI unit. Fundamental units are only 7, okay, but each and every physical quantity have its own unit, okay, in physics. So let's discuss the units of physics and units of physical quantities. आ जाओ, the concept of measurement. तो ये सर concept of measurement आया कहाँ से, ऐसा कहाँ नीड पड़ी, ऐसी कहाँ नीड थी कि सर आओ सर हम बैठ के चेक करते हैं कि सर प्रियांशु सर का वेट कितना है ना, प्रियांशु सर का वेट कितना है, बहुत मोटे हैं सर, है ना, तो इसकी नीड कहाँ थी, इसकी व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरिंग मास, नीड ऑफ मेजरिंग लेंथ, नीड ऑफ मेजरिंग टाइम, सर इसकी नीड क्यों थी, तो कंसेप्ट आया कहाँ से, ये सर किसका दिमाग था कि जो मेजर करेगा कि सर हाइट कितनी है किसी पर्सन की, किसी जो है लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, किसी केमिकल के अंदर कितने मोल हैं, हाउ मच मोल्स इन अ केमिकल है, तो ये सर ये सब किसने सोचा, तो हाँ, क्वालिफाइंग दी वर्ल्ड, सॉरी क्वांटिफाइंग दी वर्ल्ड, तो पहला रीजन दिया कि हम क्या करना चाहते हैं, हम वर्ल्ड को क्वांटिफाई, काउंट करना चाहते हैं, क्वांटिफाई मीन्स काउंट करना चाह रहे हैं कि भाई जितनी भी चीज़ें हैं इस वर्ल्ड के अंदर, कि भाई जो है सामने जो आपके पर्सन खड़ा है उस पर्सन के हाथ में ये क्या है, स्टिक है, तो ये कितनी है, हाउ मच स्टिक्स इन द हैंड ऑफ द पर्सन दैट इज टीचिंग यू, तो हमने कहा सर एक, तो हमें नीड पड़ी मेजरमेंट की, हमें नीड पड़ी मेजरमेंट की, तो आओ चलो, तो मेजरमेंट असाइंस द न्यूमेरिकल वैल्यू टू फिजिकल क्वांटिटी, क्या कर रहे हैं, हमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज मिली है, क्या मिली, हमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज मिली है, इसीलिए हमने कहा हमें वो नंबर चाहिए था स्पेसिफिक कि कोई चीज है तो कितनी है, if something is having to me then how much, how more, that's why the measurement is needed. Then unit of measurement, unit provide a standard reference for comparison. जब हमने यूनिट का बात की, जब हमने यूनिट की बात की, तो यूनिट क्या करता है, हमें एक प्रोवाइड करता है, क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, हमें कंपैरिजन प्रोवाइड करता है कि सर ये जो आपके सामने पर्सन खड़ा है उसका वेट XY kg है, और ऑन दी अदर हैंड जो कोई और पर्सन है उसका PQ वेट है, तो यह कर रहा है अभी हमें यूनिट, अगर मैं सिर्फ यहाँ लिखूं कि 75 एंड 70, तो ये ना अंडरस्टैंडिंग नहीं दे रही, ये सिर्फ नंबर दे रहे। जब मैं इसके सामने लिखता हूँ kg और मैं इसके सामने लिखता हूँ kg, मीन्स ये कह रहे हैं हमें रेफरेंस दे रहे कंपैरिजन का कि ये जो सर्कल है या फिर ये जो बॉल है वो क्या है 75 kg की है, और ये जो बॉल है ये 70 kg की है, तो हमें क्या देती है भाई, यूनिट हमें क्या देती है, एक प्रॉपर हमें कंपैरिजन देती है, क्या देती है, यूनिट हमें प्रॉपर कंपैरिजन देती है। देन एक्यूरेसी एंड द प्रिसिजन, मेजरमेंट टूल इज इन्फ्लुएंस द एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन ऑफ मेजरमेंट। अब जो मेजरमेंट के लिए जो टूल हम यूज करते हैं, जो भी टूल हम यूज करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, स्केल यूज करते हैं ना, एक छोटी स्केल आती है आपके पास मैथ्स के अंदर, आप जो है लाइन ड्रॉ करने के लिए इस तरह की छोटी स्केल आती है जिसके अंदर जो है अपने पास 0 to 15 एंड 0 देन 1 देन लास्ट में 6 लिखा होता है।
तो ये क्या होती है हमारे पास, प्रिसाइज होती है, क्या होती है, प्रिसाइज होती है, ये हमारे पास हमें एक्यूरेसी देती है, क्या देती है भाई हमें, हमने कहा कि सर 2 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ लाइन ऑफ 2 सेंटीमीटर, देन वी जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड वी जस्ट स्टॉप हियर, दिस इज द लाइन ऑफ 2 सेंटीमीटर, दिस इज द लाइन ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो मेजरमेंट जो हमारे पास जो टूल्स हैं वो क्या देते हैं भाई हमें, यूनिट हमें क्या देगी, या फिर जो यूनिट से क्या बनेंगे, मेजरमेंट टूल बनेंगे, और वो टूल हमें क्या देंगे, एक जो है प्रिसिजन देंगे और हमें एक्यूरेसी देंगे। क्लियर, तो पॉइंट नंबर 3 इज क्लियर। देन साइंटिफिक एंड एवरीडे एप्लीकेशन। अब जो यूनिट्स हैं वो कितनी साइंटिफिक हैं, हाउ साइंटिफिक यूनिट्स फॉर अस एंड हाउ यूनिट्स are applicable in our daily life. तो मेजरमेंट इज एसेंशियल फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी क्या है हमारे पास जो मेजरमेंट है बहुत ही एसेंशियल है। साथ ही साथ ठीक है क्या भाई, इन इंजीनियरिंग अगर आपका घर बन रहा है तो आपको पता है कि भाई आपके घर के अंदर जो एक छोटी सी दीवार जब बनेगी तो किस साइज़ की बनेगी, किस शेप की बनेगी, कितनी मोटाई होगी, कितनी उसकी विड्थ होगी, कितनी उसकी लेंथ होगी, कितनी उसकी हाइट होगी। तो ये मेजरमेंट हमारी डेली लाइफ के अंदर काम आ रहा है। एंड एवरीडे लाइफ आप जैसे करते हो ना, 1 टेबल स्पून शुगर, 1 टेबल स्पून टी लीफ इन एड इन 100 ml of water, 100 ml of milk and just boil it at 100 degrees Celsius temperature and the tea is ready, है ना। तो ये क्या हमारी डेली लाइफ के अंदर यूज है, ये क्या हमारा डेली लाइफ के अंदर इसका यूज है। क्लियर, then the metric system and SI system. metric system क्या है, metric system and SI system, just a second, चलो। तो ये जो metric system है वो क्या है और SI system क्या है, आओ। तो यहां 2 सिस्टम है हमारे पास, मैंने भी आपको बताया ना कि जो सेकंड है, सेकंड इज SI यूनिट ऑफ टाइम, SI यूनिट ऑफ टाइम कौन है, तो हमने कहा सर मैट्रिक सिस्टम, सॉरी सेकंड इज द SI यूनिट। तो एज इट इज एज SI यूनिट एज वेल एज द मैट्रिक सिस्टम। तो आओ दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं कि दोनों में से कौन बेटर है। आओ, बेस्ड ऑन पावर ऑफ 10 ऑफरिंग अ सिंपलर एंड मोर लॉजिकल अप्रोच टू मेजरमेंट। अब क्या है, जो मैट्रिक सिस्टम है वो क्या प्रोवाइड करता है, वो हमें प्रोवाइड करता है कि कोई भी चीज किसके अंदर हो, इन दी पावर ऑफ 10, इन दी पावर ऑफ 10। अगर मेरे को कहना है कि 1 किलोमीटर, चलो पहले मैं आपको ना सामने वाली इसकी जो सेम लाइन है वो पढ़ के बताता हूं, फिर आपको ना और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। देखो यहां क्या लिखा है, अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट बेस्ड ऑन मैट्रिक सिस्टम। क्या है, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बेस्ड ऑन मैट्रिक सिस्टम। जैसे अब मुझे, मेरे पास क्या है, मेरे पास ये जो अमाउंट है, ये कोई चीज है, कोई भी एक थिंग है जो मेरे पास, मैंने SI से जब पूछा, मैंने जब SI सिस्टम से जब पूछा कि सर व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ दिस थिंग, तो SI ने मेरे को कहा कि सर दिस इज अबाउट 1 kg। व्हाट इज दिस, दिस इज अबाउट 1 kg। ऑन द अदर हैंड जब मैं यही बात मैट्रिक सिस्टम से पूछता हूं तो मैट्रिक सिस्टम मुझे कहेगा कि दिस इज 10 raised to power 3, 10 raised to power 3 ग्राम, या फिर ग्राम बोल दो, मीन्स 1, 2 और 3। ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया। तो जो मैट्रिक सिस्टम है वो किस पे डिपेंड करता है, वो हमारी 10 raised to power पे डिपेंड करता है।
और वहीं ये जो हमारा है चाहे कोहेरेंट सिस्टम, SI सिस्टम क्या है, वो डिपेंड 10⁻⁴ पे नहीं करता। अगर मुझे यहाँ ये मैंने लिखा ग्राम के अंदर, फिर ये जो 100,000 ग्राम है वो क्या है भाई हमारे पास, 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 kg। ओके, तो यहाँ पर इजी सिस्टम कौन सा है, विच सिस्टम इज इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू मेजर, तो हमारे पास हमारे कौन सा है, SI सिस्टम है। देन आओ, यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड एंड वाइडली एक्सेप्टेड अक्रॉस दी ग्लोब। अब जो हमारे पास ये जो सिस्टम है, जब हम बात करते हैं ना मैट्रिक सिस्टम, तो मैट्रिक सिस्टम भी क्या है, ये बहुत पहले, या फिर बात करूं मैं, वैसे ये हर जगह यूज होता है, वैसे ये हर जगह होता है, इट यूज एवरीवेयर, बट द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट SI इज मॉडर्न फॉर्म ऑफ मैट्रिक सिस्टम। ये थोड़ा सा क्या है, एंशिएंट है। मैट्रिक सिस्टम क्या है, थोड़ा सा हमारे पास एंशिएंट है, और दिस इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड द कॉमन पर्सन, अंडरस्टैंडेबल फॉर कॉमन पर्सन। तो दैट्स व्हाई द मॉडर्न सिस्टम ऑफ मैट्रिक सिस्टम इज कॉल्ड SI सिस्टम, एंड नाउ SI सिस्टम इज वी आर यूजिंग। SI सिस्टम का क्या कर रहे हैं हम लोग, जो है एट प्रेजेंट में कोई सिस्टम जो यूज कर रहे हैं वो कौन है, SI सिस्टम। कौन सा है वो सिस्टम, वो सिस्टम SI सिस्टम। क्लियर, चलो नेक्स्ट। अब जो हमारे पास कौन सी है, लेंथ, कौन है भाई, लेंथ। तो अब हम क्या करेंगे, जो एक एक हमारी जो फंडामेंटल यूनिट है उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। यहाँ से हम देखेंगे सर लेंथ क्या है, यहाँ से हम देखेंगे किलोग्राम क्या है, मास क्या है, यहाँ से हम देखेंगे टाइम क्या है, यहाँ से टेम्परेचर के बारे में हम और चीज़ें थोड़ी सी और जानेंगे, इलेक्ट्रिसिटी करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, या जो हमारे पास जो है लुमिनस इंटेंसिटी क्या है, फिर हम बात करेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है। ठीक है, तो ये जो है डेरिवेशन ऑफ यूनिट्स क्या होती हैं, किस तरह से हम यूनिट को, छोटी मोटी यूनिट्स को हम डिराइव कर सकते हैं, तो वो बाकी जो सब है वो अपनी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जानेंगे। आई होप आपने जो है इस सेशन को एंजॉय किया होगा। फिर हम जो है थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंस एंड दी कंसिस्टेंस ऑफ यूनिट देखेंगे, फिर कंक्लूजन, बाकी हम सारी चीज़ें क्या करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर चेक करेंगे। वी विल सी इन दी, वी विल just discuss all the other things that we just not discuss in today's class, we will discuss in the next class. So I hope you just enjoy the video and make sure to revise it, make sure to make your own notes. We will provide you each and everything, but make sure that you just make your own notes, okay? And just take the test, okay, and just analyze your performance, how you are learning or not. Are you learning something extra than your friends, than your classmates or not? So make sure टेस्ट देना है आपको, फिर उसके जो सॉल्यूशंस जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं उन सॉल्यूशंस को आपको देखना है। ठीक है, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, चलो, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, कीप स्माइलिंग।